Hello everyone, I welcome you all to Manula Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will discuss August 23, The Hindu Delhi edition newspaper. So just to start, we will start our discussion with the very first news, that is about BRICS. BRICS is a platform for Global South set by Narendra Modi. So, as Prime Minister Narendra Modi, he reached Johannesburg in South Africa for the Leaders Summit or the BRICS Summit. He met the other leaders also, that is Xi Jinping, Lula da Silva, Cyril Ramaphosa, Vladimir Putin, and as Vladimir Putin will join via a video conference today. So, Narendra Modi said BRICS grouping is a platform for discussing the challenges faced by Global South. I have already taught you about what is Global South. Global South are those countries who are basically developing and they will soon emerge as a major economy. And BRICS, as said by everyone, that BRICS will soon emerge as a leading economy by 2047. Okay. So here the Prime Minister Narendra Modi said that he is expected to meet various leaders like the Chinese President Xi Jinping for the first time since there was an encounter at G20 Bali summit. After that he will meet him for the first time, and he landed on the South Africa's Waterkloof Air Force Base station ahead of the BRICS summit. So here there will be discussions and deliberation on various issues of concern for the entire South, which include development imperative and also the reforms in the multilateral system. Like for example, if we say about IMF or UNSC P5 members, so these reforms will be discussed in this particular summit. Who were the attendees? So as we already know, Chinese President Xi Jinping, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, and they came here to attend the BRICS Business Forum meeting along with the South African President Cyril Ramaphosa, and Mr. Modi, he will be joining the BRICS Leader Summit. So this is 15th BRICS Summit, just remember this, and it is the first in-person meet since 2019. Till the time 2019, after 2019, all the summits were convened through the via video conferencing, but now it is happening as in-person meeting after the COVID-19 pandemic. But the Vladimir Putin or the Russian president, he will take part in the summit through the video conferences, while his foreign minister Sergei Lavrov, he will come to attend the meeting in person. Okay, as African Union, it has a problem, like it has already everyone, the court of Criminal Court of Justice, it has issued a guideline against like Mr. Vladimir Putin, and it has been said that if he is found, he should be detained and he should be given for his war crimes. So that's why he cannot come, as South Africa cannot arrest him as well. And along with that, they have to attend the BRICS summit. So he will join in via video conferencing, and his secretary or the foreign minister Sergei Lavrov, he will join in person. So this is about the BRICS summit. Moving further toward our next important article, that is about Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 lander is all set for touchdown today, as we have already seen quite news about it. So we will discuss it separately in the text and context section. It will now, till now, what were the missions which has been launched? July 14. This mission was launched July 15 to 25. There was orbit raising maneuver around the earth from August 1 to 5. There was basically, it started from the earth and reached the lunar orbit. Then August 6 to 16, orbit lowering maneuver were done around the moon. And August 17, lander separated from the propulsion module. And on August 23, it was powered to descent to start at 5:45 p.m. and it will touch down the lunar surface at 6:04 p.m. Okay, so we are expecting that today we will see or create history. After the three countries, India will become the
fourth country to have successfully landed on the lunar surface. So this is in news. We will discuss separately about this in the text and context section. Moving further toward our next important article, that is about inflation pressure may linger but food prices to ease soon, as said by ministry. So India's inflation woes as not over yet, but food price spike may be transitory. The food or the rise in the food prices, it is because of various conditions, because of the climate change also, and also about various other circumstances which are leading to the food inflation. But the finance ministry has said that it is a transitionary, or we can say it is not, it is sometime somehow permanent or temporary in nature, it is not permanent in nature. And this growth in the, or this spike in the food inflation is because of the termination of the Black Sea Green Initiative. So what is Black Sea Green Initiative? It is a grain deal, or we can say a providing a safe passage through Black Sea by the Russia, as Ukraine is the grain basket, and that's why the Ukraine can do safe passage of the grains to all around the world through the Black Sea, as these are the areas which are basically under contestation. So that's why this deal was signed, and here United Nations and Turkey brokered the deal, and because of that this deal was signed. But right now, we, after the Kerch bridge breakdown, the Russia said that it will not allow anything to go or pass, and it terminated the Black Sea Green Initiative. So this was in news. So here basically the rises of pulses, cereals, vegetable, they have grown to a maximum extent, or to, we can say that the double digit growth has happened. And there are various reasons, like because of the stressed condition, sometimes we can say because of the heavy rainfall or the change in the monsoon. Because of these things, the food inflation is on the rise. So this was about this particular article. Moving further toward our next important article. So here Ashok Gehlot has launched Mission 2030 to make Rajasthan a leading state. Here basically Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot, he has launched his Rajasthan Mission 2030 in order to bring Rajasthan to the front row of the developed state in the next 7 years. So here in this, his view of the Dream 2030, he will frame such policies and programs so as to ensure the first ease of doing business and grow Rajasthan economically. And also he has already launched various initiatives for the welfare as well. For example, we have seen it is the first state to pass a law for the gig workers, or for the Employment Guarantee Act. These laws have already been passed by the Rajasthan government, and now it has launched Mission 2030, and here it will focus on various sectors, that is of health and education. These will be given priority, and through that it will come in the forefront for being the developed state of the India. Okay. Now there is another important news, that is the office school in Delhi. It will remain closed from September 8 to 10 for the G20 Leaders Summit. So this news is not important. Just this part is important, that G20 Delhi or Leader Summit will be the world's largest economies summit, and it will be held in New Delhi, and that's why there will be a closure of all these offices and schools in the Delhi region. Okay. Moving further toward our next important article, that is coming in from the state section, and here basically the news is about NASA and ESA will support ISRO during the moon landing today. So the ground station of the NASA, that is the National Aeronautical and the Space Administration, and ESA, that is the European Space Agency, they have been supporting Chandrayaan 3 from time of the launch, and now they will also help to monitor the spacecraft health. Since the launch of the Chandrayaan 3, ESA has been supporting for utilizing the two of the ground stations of the ES track network to track the satellite in the orbit,
and received telemetry from the spacecraft, forward it to the Mission Operations Center, Bangalore, and forward command of the Bangalore, and also the European Space Operations Center. Has also been helping the Chandrayaan 3 or the ISRO for the development. The ESA's 15-meter antenna at the Kourou, French Guiana, and the 32-meter antenna belonging to the Google Earth Station of the UK, they have been selected for support of the Chandrayaan 3. So whatever I have told you over here, like the Chandrayaan 3, ESA कैसे हेल्प कर रहा है और नासा कैसे हेल्प कर रहा है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. जैसे ES track, it is of ESA, it is helping. Apart from that, इसका 15-meter antenna कहाँ पे located है? Because these are in news, so that's why it is very important. नासा की अगर हम बात करें तो नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क से टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कवरेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है for the powered descent phase. So these are important, that through how, what are the tools which is being used to help Chandrayaan 3. Moving further toward our editorial section, here we have article, a very important article about the Representation of People Act. So here Rahul Gandhi, as we know, he has been, like, there was a news that he will be disqualified on being convicted and sentenced to a 2-year imprisonment in a 2019 defamation case. So the author here is trying to bring all the important articles and all the important judgments in order to get the validity of this whole systematic or the whole system of disqualification. So the disqualification was instant because of the Supreme Court of India judgment, that is about the Lily Thomas versus Union of India 2013 judgment. Just remember this judgment. इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था सेक्शन 8(4) जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को, जहां पे बेसिकली 3 मंथ पीरियड जो था वो प्रोवाइड किया जाता था विद इन विच टू अपील. अब इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन was not to take effect during this period और अपील को एडमिट किया जाता था और उसके बेसिस पे फिर डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपका इस सेक्शन के थ्रू 8(4) सेक्शन जो है उसके थ्रू आपका ये जस्टिफाई किया जाता था. बट थ्रू द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस पर्टिकुलर सेक्शन वाज रिमूव्ड और इट वाज इनवैलिडेटेड. सो इस लीगल प्रोविजन में बेसिकली आपका देयर वाज नो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. लेकिन एक बार जब आपका कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस प्रोविजन को, तो उसके चलते जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला कि जो सिटिंग लेजिस्लेचर हैं उनको तभी के तभी, जैसे ही आपका कन्विक्शन आया तभी के तभी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. तो अगर कन्विक्शन आया या सेंटेंस हुआ अंडर सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड एट दैट पॉइंट और एट दैट मोमेंट ओनली. फिर कोर्ट ने कहा आर्टिकल 1021 के बारे में अगर हम बात करें, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन द सिटिंग मेंबर एंड अ कैंडिडेट सो फार एज डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न. तो यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू द सिटिंग मेंबर फॉर 3 months एंड दस स्ट्रक डाउन द सेक्शन 8(4) एज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे 8(4) जो सेक्शन है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट मोमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सेक्शन 8(3) जो है यही आपके एक्ट में दिया हुआ है और यहाँ पे आपका बेसिकली ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर वो कन्विक्टेड है या आपका उसने कोई ऑफेंस किया है या उसको सेंटेंस हुआ है कोई जेल का इम्प्रिजनमेंट का 2 साल से अधिक या 2 साल का, तो इस केस में वो पर्सन जो है ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो, सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. ओके, बट यहाँ पे इट डज नॉट से दैट सच अ पर्सन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. तो यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है आपका कि हम ये कंक्लूड कर सकें कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा वो एट दैट मोमेंट होगा जब कोर्ट प्रोनाउंस करेगा एक पर्सन को गिल्टी, या ये सिर्फ आपका एक कंडीशन है कि आपका उस इंसान को हमें डिस्क्वालीफाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन.
तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की, तो मिस्टर गांधी और द राहुल गांधी, इनके केस में बेसिकली हुआ क्या, इट डिड नॉट हैव अ साउंड लीगल बेसिस। पर्टिकुलरली जब आपके वर्ड्स को कंसीडर किया जाएगा, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, तो यहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली साउंड लीगल बेसिस दिया नहीं गया है। तो ऑथर, ये राइटर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अथॉरिटी जो है, दैट हु कैन डिक्लेयर अ सिटिंग लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफाइड could be the President of India exercising this power under Article 103। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था अपने जजमेंट में, लिली थॉमस का जो जजमेंट हुआ था, और एक 3 जज बेंच जो था वो बैठा था, और उसमें इन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 103 दैट द सिटिंग मेंबर हैज इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, यहाँ पे इन्होंने इसको नेसेसरी कर दिया। तो इस स्कीम के थ्रू 8.3 जो है, सेक्शन 8.3, इट सीम्स टू बी दैट व्हेन अ सिटिंग मेंबर is convicted and sentenced to the imprisonment for 2 years or more, he shall be disqualified with the effect of the date of conviction। और आपका फर्दर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, इट इज द प्रेसिडेंट हु शैल डिस्क्वालिफाई हिम अंडर आर्टिकल 103। तो अभी का जो कन्वेंशन है वो ये है कि जब आपका डेट ऑफ कन्विक्शन आ जाएगा उस दिन से वो डिस्क्वालिफाई होंगे, लेकिन वो डिस्क्वालिफाई कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। तो जो सेक्रेटेरिएट है हाउस का, to which the member belongs, he has no recognizable authority to declare any member as disqualified as soon as he is convicted by the court of law। Just remember these important points, okay? नाउ हेयर बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन और जो सेंटेंस का क्वांटम है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो इंसान को डिस्क्वालिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन का जो राहुल गांधी पे केस चल रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टे दिया गया है, वेयर द स्टे ऑफ ओनली सेंटेंस कैन लिफ्ट द डिस्क्वालिफिकेशन और वेदर द स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नेसेसरी। 1980s और 1990s की टाइम की बात करें तो कुछ हाई कोर्ट थे आपके, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द सचिंद्रनाथ त्रिपाठी केस, हिमाचल हाई कोर्ट इन द विक्रमानंद केस। तो यहाँ पे इन्होंने व्यू रखा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इट रिमेन इंटेक्ट ऑन स्टेइंग अ सेंटेंस, ओके। बट मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिफरेंट व्यू लिया था जयललिता केस में 2001 में, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि द मोमेंट ऑफ द सेंटेंस इज सस्पेंडेड, conviction should be deemed to have suspended, or otherwise the framer of the code would have taken care to provide for the stay of conviction। तो यहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट ली है, बट अगर हम सारे जजमेंट को एक क्रक्स में मिला के देखें तो यहाँ पे ये बात आती है कि it would mean that the disqualification is directly relatable to the quantum of sentence and not on the conviction। So this is a very important judgment or very important इन्फेरेंस विच वी कैन इन्फेयर, ओके। लिली थॉमस के केस में बेसिकली यहाँ पे तो था कि जैसे ही आपका कन्विक्शन आया वैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अनजस्ट था, क्योंकि जो भी आपके लेजिस्लेचर है उनका पूरा करियर दाव पे लग जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इन नीड कि हम इस बारे में थोड़ा सोचें और इस बारे में हम थोड़ा बात करें, ओके। So this was about this whole article. Just remember all the important sections, section 8.3, section 8.4 of the Representation of People Act, and also about the article 103, okay. These are important from this whole article. Now here we have a very important article or clipping infographic where we will see the Chandrayaan 3 suspense, or here we will discuss the details of everything। So विक्रम लैंडर जो है ये अपना सबसे पहले पावर डिसेंट स्टार्ट करेगा फ्रॉम द ऑल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर्स, और यहाँ से ये आपका entirely it will be entirely moving entirely horizontally इस पॉइंट पे at around 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये अपने 4 engines जो है उसको फायर करेगा to cut about 80% of that speed, and then it will also reduce its height over moon surface from 25 किलोमीटर to 7.4 किलोमीटर्स। और उसके बाद जो मून की ग्रेविटी है उसकी मदद से 61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको मूव डाउन करना है, जिससे ये 11 मिनट में आपका डिसेंट कर सकेगा। सेकेंड फेज में क्या होगा, जो लास्ट के 10 सेकेंड होंगे उसमें जो लैंडर है ये अपना ओरिएंटेशन जो है
रिलेटिव रखेगा टू द सरफेस फिक्स्ड यूजिंग इट्स 8 थ्रस्टर एंड डिसेंडेंट, और यहाँ पे 7.4 to 6.8 किलोमीटर अबव द सरफेस, और इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा इट विल ऑल्सो स्लो डाउन फर्दर, और इसका वर्टिकल स्पीड जो होगा ये आपका अनचेंज रहेगा. सो दिस इज हाउ इट विल लैंड ऑन द मून सरफेस. थर्ड फेज जो होगा यहाँ पे बेसिकली आपका बिफोर लैंडिंग इट विल बिगिन नाउ, और यहाँ पे लैंडर जो है वो डिसेंड करेगा 6.8 किलोमीटर से 0.8 से 1.3 किलोमीटर तक. फिर फोर्थ फेज जो होगा ये आपका बेसिकली 12 सेकेंड का होगा, और यहाँ पे जो भी आपके 4 लेग्स इसके एसोसिएटेड हैं it will pointing downward and it will determine if it is above its intended landing spot or can descend to a predetermined safe spot. और उसके बाद ये रेस्ट करेगा उसके सरफेस पे ये लॉन्च होगा. ठीक है. फिर फिफ्थ स्पीड जो है उसमें 150 मीटर का जो है डिस्टेंस रहेगा, और फिर ये अपने होवर को स्टार्ट करेगा, और उसके बाद ये गाइडेंस लैंडर का जो नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल एनजीसी सिस्टम है उसके थ्रू हजार्ड अवॉइडेंस करेगा, हजार्ड अवॉइडेंस सेंसर का यूज करेगा, और उसके थ्रू ये अपना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल से परफेक्टली वर्टिकल पोजीशन में आएगा, और उसके बाद जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगी वो आपका ये इम्प्लीमेंट करेगा. फिर फाइनल क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से आपका वर्टिकल में आ गया, तो यहाँ पे ये जो आपका लैंडर रोव कर रहा है, होवर कर रहा है, इट विल रीएवैल्यूएट वेदर इट कैन resume downward movement or if the safer place to land is within a 150 meter radius. तो जहां पे भी इसको safer place मिलेगा वहां पे ये land कर जाएगा. So this is the whole process which will happen at 5:54 PM somewhere at that time. और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो आपका लैंडर है वो लैंड किया या नहीं किया. चंद्रयान 1 मिशन की बात करें तो ये फर्स्ट मिशन था मून का. चंद्रयान 1 जो था वो अक्टूबर 22, 2008 को लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे इसका जो सैटेलाइट था इट वाज ऑर्बिटेड टू मून मोर देन 3400 टाइम्स, और उसके बाद इसके साथ हमारी कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश हुई थी वो आपका अगस्त 29, 2009 में ये कम्युनिकेशन जो थी वो लॉस्ट हो गई थी. तब तक ये काम कर रहा था, और इसने कंफर्म किया था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द surface of moon. Then came Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 जो था इस was launched in July 22, 2019. इसमें आपका ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, और ये इसका मिशन भी सेम था कि ये साउथ पोल जो था वहां पे लैंड करना चाह रहा था पर हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ द हार्ड लैंडिंग. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, एंड वी विल ऑल्सो सी हेयर अबाउट अ स्टैटिस्टिक्स कि हिस्टोरिकली 40% जो मून मिशन है दे हैव फेल्ड. रिसेंट हमें फेल किसका दिखा है, लूना 25 उसका. और जो रोबोटिक लैंडर मिशन है जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 हो गया जहां पे स्पेसक्राफ्ट क्या करता है, लैंड करना चाहता है लूनार सरफेस पे, उसका फेलियर रेट और ज्यादा हायर है, इट इज अराउंड 60%. और जो सैंपल रिटर्न मिशन होते हैं, मतलब मून के सरफेस से सैंपल रिटर्न करके वापस अर्थ पे जिनको आना है वो और ज्यादा हार्ड होता है, और उसका फेलियर रेट जो है वो 67% है. और वहीं अगर हम बात करें ऑर्बिटर और फ्लाईबाई की कि कितना वो रिलेटिवली सक्सेसफुल होते हैं, तो वो आपका उसका फेलियर रेट है 36.7% फॉर ऑर्बिटर एंड फ्लाईबाई के लिए 24.6%. टिल नाउ ओनली 3 countries have soft landed on robotic lander or the with the robotic lander on the moon surface, that is USA, Russia and China. So it is very important. Okay. रोवर की जो हमारी प्रज्ञान रोवर जो अभी आपका लैंडर के साथ जा रहा है, जो आपका सरफेस पे मूव करेगा, उसका जो मिशन लाइफ है वो 1 lunar day का है, और ये उसके स्पेसिफिकेशंस है. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फेलियर ऑफ द लूना 25 मिशन. सो अगस्त 11 को हमें न्यूज मिलती है रॉस्कोमॉस से, रशियन स्पेस एजेंसी जो है, कि उसने अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है जिसमें आपका सोयूज 2 रॉकेट यूज किया गया था उसको लॉन्च किया है. लेकिन अगस्त 20 में हमें रॉस्कोमॉस अपडेट देता है कि लूना 25 जो है उसको एक कुछ ग्लिच हो गया और उसके चलते वो मून के सरफेस पे क्रैश हो गया. अब इस स्टेटमेंट में रॉस्कोमॉस ने ये कहा है कि इट विल पुट
a committee or start a committee report to investigate the precise way और क्यों यहाँ पे फेलियर हमें देखने को मिला, what was that glitch जिसके चलते ये जो आपका मिशन था लूना 25 ये आपका फेल हो गया। तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रही थी उसके बारे में सर्च करने के लिए मिशन जो है कमिटी जो है उसको स्टैब्लिश की जा रही है। तो यहाँ पे रशिया ने लॉन्च क्यों किया था लूना 25? क्योंकि लूना 25 जो है इट हैज बीन इन द वर्क्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स और इसको स्टार्टिंग से लूना ग्लोब कहा जाता था और उसके बाद इसका नाम जो था वो बदल के रखा गया लूना 25। ये आपका लूना मिशन जो है जो 1976 से चल रहा है उसी का एक पार्ट था। तो लास्ट जो आपका एडिशन आया था लूना मिशन में या लूना सीरीज में वो 1976 में आया था। इसमें आपका बेसिकली रोस्कोमोस ने ये कहा कि मिशन का पर्पस जो था इट वाज टू एंश्योर रशियाज गारंटीड एक्सेस टू द मून सरफेस, बस ये इसका मिशन था, इसीलिए यहाँ पे रशिया ने इसको लॉन्च किया था। अब रशिया और चाइना दोनों साथ में अपना इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं अगेंस्ट द यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड और रशिया ने यहाँ पे बेसिकली अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है लेकिन सून इट विल एग्जीक्यूट विद चाइना। तो कुछ जो आपके एक्सपर्ट हैं इन्होंने बोला है कि रशिया का जो लूना 25 है एज व्लादिमीर पुतिन हैज सेड that it was basically to demonstrate that country's economy including the space flight sector यहाँ पे किसी भी वॉर के चलते आपका अफेक्ट नहीं हुई है एंड दैट्स व्हाई ही हैज लॉन्च सच मिशन। अब अगर हम बात करें दो मिशन की इस रेस में तो हमारा क्या क्या कौन कौन से मिशन थे लूना 25 और साथ में चंद्रयान 3 हमारा इंडिया का चंद्रयान 3 और लूना 25 रशिया का, दोनों को सिमिलर टाइम फ्रेम में ही छोड़ा गया कि मतलब आपका जो यहाँ पे लैंडिंग होनी थी मून के सरफेस पे वो आपका सिमिलर टाइम पीरियड था। ये अगस्त 20 को जा रहा था, हमारा 23 को जाने वाला था, लैंड करने वाला था। अभी देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो स्पेस रेस है इसमें आपके ये दो मिशंस थे लूना 25 क्रैश्ड। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन टू द आवर चंद्रयान 3 मिशन। सो दिस इज इन न्यूज कि आपका एक कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी, जितने भी आपके स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो कर लीजिएगा, दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। This news we have already discussed about the North Sea news, it was there. So here basically fostering tourism, understanding the construction of project and developing infrastructure, ये आपका रेवेन्यू भी जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ बेसिकली अभी हमने रिसेंटली कल के न्यूज में ही पढ़ा था नॉर्थ सी के आसपास आपका जो यूके है उसने 100 कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड की है जिसके थ्रू वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, बट इट इज नॉट एनवायरमेंटली फिजिबल। तो ऑन अ सिमिलर नोट यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करके बताया गया है कि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे हम यहाँ पे अगर टूरिज्म लाते हैं या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करेगी इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं दे आर क्वाइट बायोडाइवर्स और जब कभी भी हम कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करते हैं तो इस केस में हमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हटाना पड़ता है या उसको रिमूव करना पड़ता है। सो दैट इज अ नेगेटिव सेटबैक ऑन द बायोडाइवर्सिटी। So here the Meghalaya High Court, it was hearing a PIL on the cleanliness of the Umiam Lake. Okay, यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मेघालय वाटर बॉडीज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन गाइडलाइंस 2023 हैं, they did not deal with the most serious aspect of building and construction, mushrooming around the water bodies। मतलब आप यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, पास में आपका वाटर बॉडीज है, तो यहाँ से आप पानी विड्रॉ करेंगे, वेस्ट डंप करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका वाटर बॉडीज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन गाइडलाइंस 2023 है मेघालय गवर्नमेंट की, इट इज नॉट कंफॉर्मिंग टू कैसे इसको यूज करना है, वाटर को यूज करना है और कैसे इस बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वाटर बॉडीज के अराउंड तो हमारा क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए। सो दिस इज इन न्यूज। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसको हम ग्रीन बेल्ट रीजन भी कहते हैं क्योंकि बहुत अबंडेंट यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल हो गया, फ्रेश वाटर हो गए। गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हैं और जो आपका ब्रह्मपुत्र वैली है ये आपके इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं।
नॉर्थ ईस्ट जो है इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, डिफॉरेस्टेशन का शिकार है, फ्लड का शिकार है, और जो भी आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आपका इकोलॉजिकली फ्रिजाइल एरिया में आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्स कंट्री है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस ऐसे लाना जरूरी है जो आपका डेवलप तो करे ही, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन साथ में आपका सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इकोलॉजी को प्रिवेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो भी आपके प्रोजेक्ट, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हो, दे शुड कंसीडर इन माइंड अबाउट द इकोलॉजी एज वेल। डेवलपमेंट के साथ इकोलॉजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Moving ahead toward our next important article, that is coming in from the world section, and here there is a very important news, that is the Thai parliament elected Shrita Thavisin as prime minister. Okay, so Shrita Thavisin, he is the kingdoms or the Thailand के ये आपके नए प्राइम मिनिस्टर है। सो जस्ट रिमेंबर अबाउट हिम नेम, ही इज द 30th प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे इन्होंने वो जल्दी ही ये आपका ओथ लेंगे और ही विल बी सून द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाई। Okay, so this is all for today. I hope you liked this session. I hope you got to know a lot of things. Thank you everyone. Thank you for being here.